नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कुछ दफात पर लगाई रोक, पूरे कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। वक्फ तरमीमी कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिला जुला रद्द अमल। कांग्रेस ने कहा वक्फ इमलाक को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। किरण रिजिजू ने फैसले को बताया इत्मीनान बख्श। पटना में पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों का हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। रोजगार भर्ती के ऐलान के बावजूद इम्तिहानात में ताखिर पर किया हंगामा। और मुल्क भर में फिर हुआ मानसून फाल। यूपी और महाराष्ट्र समेत शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश। तेलंगाना और आंध्रा में तूफान का खतरा। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने उबूरी हुक्म सुनाते हुए कहा कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कुछ दफात पर ही रोक लगाई है। अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम रुकन नहीं होने चाहिए और जहां तक मुमकिन हो बोर्ड का CEO मुस्लिम होना चाहिए। वक्फ एक्ट को लेकर दाखिल की गई मुख्तलिफ अर्जियों पर समाअत के दौरान CJI BR गवाई ने कहा कि हमने हर एक सेक्शन को दिए गए चैलेंज पर गौर किया है। हमने पाया कि कानून के मुकम्मल इल्ज़ामात पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता, हालांकि कुछ सेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। वक्फ तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पर रोक सिर्फ नायाब से नायाब तरीन मामलों में ही लग सकती है। So basically, the Supreme Court commented that instead of challenging the whole act, there are the 3-4 provisions which are being stayed, though they are being extremely important, and to somehow it is a bit of disappointment. But anyway, these are not the final orders. The Honorable Apex Court, they have stayed the main provisions 2R, 3C. So, ma'am, in common language, in layman language, what are those provisions? Those have been stayed. So basically, the stay is on that the government cannot create any third-party interest. They have until or unless the title is being cleared on the Waqf property. So earlier, the collector had the right to just to take the property, the alleged Waqf property, in its possession, and then the government revenue records they need to verify. And then accordingly, because the possession was earlier been taken by the government. So now the Honorable Apex Court had clearly put a stay on it, and they have clearly mentioned that until or unless the title is not made clear, it will be stayed. Then the other important point is that the 5-year clause, the Amendment Act, yes, the Amendment Act clearly said just to put a check on the conversions and then the forced transfer of the properties to the Waqf. So they have directed the states to frame a policy that the states, after framing the policy, they will first check whether the individual has genuinely been converted to Islam and has been practicing Islam for 5 years. So once it's been confirmed, then only they'll be able to create the Waqf. Ma'am, what about the power given to the DM for inquiring the disputed matters? So that has been completely stayed, you see. So any specific comment on this provision? So the specific comment is that earlier clearly the title is to be established first. So the power of the collectors, the court has put a clear stay on it. Earlier the collector had a clear right that they can just take the possession of the property, whatever the dispute it is. So that is a clear stay on it, and until or unless till the High Court the
title is being cleared, no third party interest will be created. And ma'am, what about the composition of council and board, ma'am? On the So the composition of they had put a restriction on maximum 4 non-Muslim members. So and for the state it is 3, and the CEO can be a non-Muslim. So there is and there is a stay that they cannot increase that. वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने वालों में आप के अमानतुल्लाह खां, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी, केरला जमीयतुल उलमा के अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, TMC MP महुआ मोइत्रा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, RJD MP मनोज कुमार झा, SP MP जियाउर रहमान बर्क, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और असदुद्दीन अवैसी और DMK शामिल हैं। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और दीगर कायदीन ने इस सिलसिले में रद्द अमल जाहिर किया है। The Supreme Court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. So there was a contentious issue inquiry by the DM. Has anything been said? So on that, it has been said that the executive cannot take the role of the judiciary and have in a way stayed the provision until a proper mechanism is devised, and that is why I said no one can be dispossessed of their waqf property in this matter. And what about the members of the waqf board? The 3 in not more than 3 in the waqf board can be non-Muslim members. And how do you see this order, sir? I am very positive. We'll have to read it. It is a lengthy order, the chief has informed us, and we'll read it, but it looks like a balanced order. This can be termed as a victory for us. शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। You see, the Honorable Supreme Court has made very categorical interim order today. Number 1, there is no stay on the amendments brought in by the central government headed by Manniya Narendra Modi ji. So there is no stay on the amendments. Only there is a interim order in favor of the petitioners regarding that they cannot be deprived of the work property without following the procedure laid down in the law, including the amended law. Third, that if any work has to be taken by the government or the possession has to be taken back, that the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court. And very important order that those works are now has to be registered. Meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. Sir, there is a contentious issue about practicing Muslim, that one has to be a practicing Muslim before he creates a waqf. You see, if you remember that when this argument was going on, at that point of time, learned Solicitor General of India had given concession about this provision that the 5 years practice of Islam, the Honorable Court can
decide this issue as per their own discretion. So accordingly, those who are practicing, who have not practiced Islam for 5 years, they cannot create work. That provision has been stated. अक़लियती उमूर के वज़ीर किरेन रिजिजू ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये फैसला इत्मीनान बख्श है। उनका कहना था कि उनकी सरकार ने वक्फ की अमलाक को बचाने के लिए ये कानून लाया है और इससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं। और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है। और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है। लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट का स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया। और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स इम्तिहानात में मुकम्मल शफाफियत का मुतालबा करते हुए यहाँ के तलबा ने पटना में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाज के दौरान तलबा की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। तलबा का इल्ज़ाम है कि बिहार की हुकूमत ने नौकरियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया था, मगर अब तक इस पर अमल नहीं हो सका है। इस एहतजाज में पटना के मशहूर टीचर रोशन आनंद भी शामिल हो गए। रोशन आनंद का कहना था कि इलेक्शन करीब है और अगर अब नौकरियों पर भर्ती नहीं की गई तो फिर इलेक्शन को कोड लग जाएगा और फिर ये मामला टल जाएगा। एहतजाज के दौरान पुलिस ने रोशन आनंद और दीगर कई तलबा को हिरासत में ले लिया। देखिए, छात्रों की मांग है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी जो हैं, खुले मन से कई बार इस बात की घोषणा किए हैं कि बिहार दरोगा के लिए 1800 पोस्ट की वैकेंसी आनी चाहिए। आखिरकार मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिए जाने के बाद भी जो है क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या बीच में मामला फंस रहा है? आगे जो है आचार संहिता लागू हो जाएगा, अगर आचार संहिता से पहले नहीं आया तो फिर वैकेंसी आएगा नहीं। तो ये छात्रों का आंदोलन है और हम यही चाहते हैं कि छात्रों की जो मांग है, नीतीश जी स्वयं छात्र आंदोलन से उभरे हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि नीतीश जी हम लोगों की मांग को सुने।
आप लोगों को रोक दिया, आगे जाने नहीं दे रहा। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से जो है हम प्रशासन से सहायता की मांग करेंगे कि हमें सहायता दिया जाए, हमारी बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। बिहार दरोगा की वैकेंसी, नियमित वैकेंसी जो विगत 2 वर्षों से नहीं आई है, कई महीनों से, कई सालों से कहा जा रहा है कि 1799 वैकेंसी कल आएगी, परसों आएगी। हम त्रस्त हो चुके हैं, हमारा उम्र समाप्त हो रहा है। चुनाव समाप्त समय पर होता है, सरकार समय पर बन जाती है, फिर हमारे मांगे क्यों नहीं? इसीलिए हम अपनी मांगों के साथ, तमाम अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ रोड पर उतरे हैं और तमाम शिक्षक हमारे सहयोग में उतरे हुए हैं। रोका हुआ है, अगर पुलिस प्रशासन आगे नहीं जाने देती है तो हम आगे बात करेंगे, डेलीगेशन टीम हमारी जाएगी, या तो मुख्यमंत्री या तो मुख्य सचिव से, उसके अलावा किसी से नहीं मिलेंगे हम लोग। अमन कुमार यादव। अदाकारा उर्वशी रौतेला और बंगला फिल्मों की हसीना व टीएमसी की साबिक एमपी मिमी चक्रवर्ती भी गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने दोनों को इस मामले में इतवार को समन भेजा। उर्वशी को जहां एक तरफ 16 सितंबर को दिल्ली में वाक़ ईडी दफ्तर में पेश होना है, वहीं मिमी से इस मामले में आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर आई। उर्वशी पहले से ईडी की इस जांच के दायरे में शामिल थी, पर अब उसे मजीद बढ़ा दिया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने आज एनएसयूआई के कौमी सदर वरुण चौधरी और दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव के साथ मिरांडा हाउस, कैंपस लॉ सेंटर CLC और हिंदू कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान तलबा से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन इंतखाब में NSUI के उम्मीदवारों की जीत को लेकर पूरे एतमाद का इजहार किया। दारुल हुकूमत दिल्ली के रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसे में वजारत खजाना की मुलाजिम नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी अहलिया शदीद जख्मी हो गई। मिस्टर सिंह वजारत खजाना में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर मामूर थे। जुनूब मगरबी दिल्ली के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अभिनव पोसवाल ने आज कहा कि हादसे में मुलविस नीले रंग की BMW कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है और मुलजिम खातून ड्राइवर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नवजोत सिंह की मौत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उनके बेटे ने इल्ज़ाम लगाया है कि बरवक्त और मुनासिब तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस उनके वालिद की जान गई है। अपने घर आया था नाइट स्टे करके, एंड मैं घर पहुंचा, मैंने मैसेज करा मम्मी पापा को कि मैं पहुंच गया हूं घर। वो लोग बंगला साहब गए थे, मेरे को मम्मी ने 11 बजे मैसेज करा था कि बंगला साहब जा रहे हैं। एंड फिर मैंने कॉल करा, उन्होंने कॉल उठाया नहीं, मुझे लगा बाइक चला रहे होंगे तो नहीं उठाएंगे कॉल। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे एक फैमिली फ्रेंड का फ़ोन आता है कि ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया एंड वहाँ न्यू लाइफ हॉस्पिटल है GTB नगर में, वहाँ जाना है। तो उन्होंने मुझे पिक करा और लेके गए। थैंकफुली क्या हुआ था कि वैसे तो एक्सीडेंट के टाइम मेरे मम्मी पापा दोनों अनकॉन्शियस थे, बट मम्मी को बाद में कॉन्शियसनेस रिगेन हो गई थी एंड उनको नंबर नहीं याद आ रहा था किसी का भी, मेरा भी नहीं आ रहा था एंड और किसी का भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक ऐसे बोल दिया कि एक हॉस्पिटल में हमारे ये फ्रेंड है तो उनको बता दो, क्योंकि वो ट्रेसेबल था, तो उसी के थ्रू पता लग गया, नहीं तो पता ही नहीं लगता है। तो एंड उसके बाद उन्हें किस अस्पताल में लेकर गए, वहाँ पर क्या स्थिति हुई? उसके बाद दोहरा अराउंड 1:30 बिटवीन 1 and 1:30 एग्जैक्ट टाइम अभी पता नहीं, बट ये एक्सीडेंट हुआ था। गर्ल ड्राइविंग BMW क्रैश इनटू माय पेरेंट्स मोटरसाइकिल एंड उसके बाद फॉर सम रीज़न जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ, देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग हियर, बट उनको 20 किलोमीटर दूर जो 1 घंटा लगा, उनको न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल है GTB नगर में, वहाँ लेके गया। बहुत ही इट इज़ हॉस्पिटल भी नहीं है, इट इज़ मोर लाइक ए नर्सिंग होम, बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल एंड दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज़। मेरी मम्मी तो जब मैं पहुंचा मैंने देखा वो लॉबी में ही स्ट्रेचर पे उनको पट्टी वट्टी बांध रहे थे, डोंट इवन हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, और पता नहीं क्यों वहाँ लेके गए एंड ये उन्होंने ही भेजा था जिन्होंने द वन हु वाज ड्राइविंग द कार। आपके फादर की डेथ क्या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो गई थी? ही वॉज, हाँ वहाँ पे जो पता लगा कि ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड
बट अगेन कि यूजुअली जिन लोगों ने मतलब बात करी है अभी, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के इंस्टेंटली बाद डेथ इज़ वेरी रेयर, मतलब यूजुअली थोड़ा टाइम होता है। एंड धौला कुआं के पास तो यू हैव एम्स, यू हैव सुपर स्पेशलिटी, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ ले जाते तो शायद बच जाते। वो जो लोग BMW में थे, कितने लोग थे, कुछ पता चला कहाँ हैं? हाँ, सो उनको भी माइनर इंजरीज हुई थी एंड दे वर इन द सेम हॉस्पिटल। अपेरेंटली आई एम नॉट श्योर इफ इज ट्रस्टेड सोर्स है नहीं, तो द गर्ल हु वाज ड्राइविंग द BMW ओन्ड द न्यू लाइफ हॉस्पिटल इन GTB नगर, गगनप्रीत कौर करके, एंड वो थे और उनके हस्बैंड थे गाड़ी में, और वो भी वहाँ एडमिटेड थे, हाउएवर विद वेरी माइनर इंजरीज। एंड बट इट डजंट मेक सेंस कि तुम मतलब इतना क्रिटिकल पेशेंट को तुम, एंड माय पेरेंट्स एक्चुअली गॉट देयर इन अ वैन, मतलब दे वर अनकॉन्शियस, किसी ने उनको पोर्टर वाली डिलीवरी वैन होती है उसमें डाल दिया। मेरी मम्मी को बीच में कॉन्शियसनेस आई थी वापस, शी वॉज इन द पैसेंजर सीट, और उन्होंने ऐसे पीछे देखा तो पापा ऐसे लेटे हुए थे, मतलब वैन में जो डिलीवरी वैन टाइप होती है उसके बाहर पोर्टर लिखा हुआ। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून का असर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और शुमाल मशरक़ी रियासतों में भी शदीद बारिश हो रही है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने मुल्क की कई रियासतों के लिए शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। दरअसल पूरे मुल्क में मानसून का यह असर खलीज बंगाल में बने दबाव की वजह से हो रहा है। इस दबाव का सबसे ज़्यादा असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और शुमाल मशरक़ी रियासतों में होने वाला है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने इन रियासतों में आइंदा कुछ दिनों में शदीद तरीन बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु के साहिली इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने और शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तूफानी बारिश के बाद एक बार फिर मुंबई की मोनोरेल बीच रास्ते पर ही रुक गई, जिससे मुसाफिरों में खौफ व दहशत का माहौल देखा गया। शदीद तरीन बारिश के बाद वडाला के इलाके में अचानक तकनीकी खराबी आने के बायस ट्रेन रुक गई। कई घंटों की कोशिश के बाद मुसाफिरों को इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकाला गया। आज 7 बजे के दरमियान वो मोनोरेल टेक्निकली फेल हुई है। डॉक्टर मुकुंदराम अंबेडकर रोड जंक्शन पे ये मोनोरेल गाड़गे महाराज से चेंबूर तक चलाई जा रही थी। जैसी खबर मिलने के बाद मोनोरेल की टेक्निकल टीम में मुंबई फायर ब्रिगेड को कॉल आया था। वो हिसाब से मुंबई फायर ब्रिगेड से वडाला, रावली कैंप और बाइकाला से जो टेक्निकल हमारा स्पेशल व्हीकल है इसको टर्न आउट किया था। हम लोग आने तक मोनोरेल की टेक्निकल टीम ने रैम्प के द्वारा 17 लोग अंदर फंसे थे, उसमें मोटरमैन भी थे, उनको सेफली सुरक्षित उन्होंने बाहर निकाल दिया है। अभी जो ट्रेन बंद हुई है उसको कपलिंग करके मोनोरेल के उनको जो स्टेशन है वडाला वहाँ लेने का काम चालू है। इस पूरी घटना में किसी का नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान नहीं, किसी को तो लगा नहीं, सब प्रवासी सुरक्षित है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन प्रॉपरली उन्होंने किया है, हम लोग साथ में थे उनके, पूरा ऑपरेशन अभी खत्म हुआ है। अनुराग कश्यप की नई फिल्म निशानची रिलीज के लिए तैयार है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए अनुराग कश्यप ने कहा कि यह फिल्म आज की फिल्मों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कहना था कि सलीम जावेद के ज़माने की स्क्रिप्ट को यहाँ आजमाने की कोशिश की गई है और यकीनन ये एक दिलचस्प तजुर्बा रहेगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कुछ दफात पर लगाई रोक, पूरे कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। वक्फ तरमीमी कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कांग्रेस ने कहा वक्फ इमलाक को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। किरण रिजिजू ने फैसले को बताया इत्मीनान बख्श।
पटना में पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों का हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। रोजगार भर्ती के ऐलान के बावजूद इम्तिहानात में ताखिर पर किया हंगामा। और मुल्क भर में फिर हुआ मानसून फाल। यूपी और महाराष्ट्र समेत शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश। तेलंगाना और आंध्रा में तूफान का खतरा। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।